وعلیکم السلام. عمر خان ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی, اینڈ ویلکم ٹو مائی شو. اچھا یہ کیونکہ آج ہم حشرات الارض کے حوالے سے بات کریں جو آپ کے گھروں میں آ کے گھس بیٹھی ہیں, بیسکلی گھس بیٹھی ہیں. گھر کا کچن صاف نہ ہونا پھر کہتے ہیں تب یہ ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن چھپکلیاں کیسے آ جاتی ہیں گھروں میں, مجھے کوئی یہ تو بتائے. آئی تھنک بہت ہی کم گھروں جہاں نہیں آتی چھپکلیاں. اگر ایک تو چلو دروازے کے نیچے, جیسے میرا جو ہے نا دروازے کے نیچے, میں نے پہلے نہیں پتا تھا کہاں سے آ رہی ہے. ایگزاسٹ فین پہ جالی لگا لی, ٹھیک ہے, وہاں سے آتے ہیں, پیچھے جالی پورا لگا لی, کہیں پہ کچھ نہیں. اچھا اے سی کے ہولز جو ہیں, اگر وہاں سے وہ پائپ نکلا ہوا ہے اور پائپ واپس ڈال بھی دیا تو وہاں پہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. سیمنٹ اور بیک سائڈ سے اکثر جو کوے ہیں نا وہ گھر بھی بنا لیتے چڑیاں, تو آپ کو وہ بھی کپڑا لگا دو اس کے اندر تاکہ وہ اتنی سی جگہ ہوگی, وہ بچہ آ سکتا ہے پتلا سا, پھر وہ کبھی کبھار جیسے کہ کیبنٹس میں بھی چھپا ہوا ہے باہر جگہ بڑا ہو جاتا ہے. میں نے پھر کیا کیا, وہ ربڑ آتا ہے تو ہر دروازے کے نیچے باہر مین انٹرنس پہ بھی ربڑ لگوا لیا ہے, تو اس سے نہیں. اور دروازہ کھولو تو یہ دیکھو اس میں کوئی گیپ تو نہیں ہے, چاہے جالی کا ہو یا لکڑی کا, درار اسپیشلی ایک نیٹ کا بھی جو نہیں ایسا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے گرل بھی اس میں, نیٹنگ بھی ہے, تو وہ جب آپ کھولتے بھی نا آس پاس تو بچے بھی شام مغرب کے ٹائم یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں, دروازہ کھولا تو بھی اندر آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ کبھی کبھی آپ سب چیزوں کا خیال بھی رکھیں, ہاں پھر بھی آ جاتے گھر میں 2 منٹ کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھلا رہتا ہے کہ اسی وقت سے وہ چھپکلی ایک اندر آتی ہے, اور ہوتی وہ ایک ہے لیکن وہ پورے گھر میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. خیر میں چھپکلیوں کے ٹاپک پہ تو آؤں گی کہ جی ان کو کیسے جو ہے, کیونکہ ہمارے اسپیشلسٹ یہاں پہ موجود بھی ہیں, ان سے پوچھیں گے بھی چھپکلیاں گھر میں نہ گھسیں کیا کر سکتے ہیں. میرا آپ لوگوں سے پہلا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ ساتھ سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی گھر میں گئے ہو کھانا کھانے کے لیے, اور کھانا تو بڑا زبردست ہے لیکن آپ نے گھر کی کچن کی حالت دیکھی اور ویسے صفائی ستھرائی کی حالت دیکھی تو آپ کا دل خراب ہو گیا؟ ہاں کئی دفعہ ہوا ہے, بہت بار. انفیکٹ میں تو خیر دیکھ بھی لیا تو پھر بھی کھا لیتی ہوں نا. بات میری مدر بہت فنیکی ہے, ممی, ان کو تو ویسے بھی ہے, وہ ٹی وی دیکھیں گی جو گندگی ہے بس کہتی ہیں مجھ سے نہیں کھایا جاتا باہر کا کھانا اپنا, انٹل اس کے سامنے بن رہا صاف ستھرا. تو ہم یہ کہ شروع سے ہے کہ ٹھیک ہے لکھڑ ازم پتھر ازم ماشاء اللہ, ٹھیلے والے کا جو گندا پانی کے اندر دھو کے گول گپے بھی کھا لیے, تو مطلب ایک آپ کا ایک پرسنالٹی آ جاتی ہے سامنے کا, کتنا گندا رکھا ہے, بہت ہی گھن آتی ہے کہیں کیسز پہ, مگر آپ اس وقت کھانا تو پڑتا ہے. سائمہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے خاتون خانہ کبال بھی آ جاتا ہے درمیان میں. یہ تو بہت ہی یہ بہت اچھے ریسٹورینٹ میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی کوئی بال نکل آیا ہے تو وہ تو پھر میرے لیے تو وہ ہو جاتا ہے کہ جی سارا کھانا جی وہ تو ہم تو بل نہیں پے کریں گے. میں ایک ریسٹورینٹ کا بتاؤں آپ کو کہ ہم نے کباب منگوائے تھے, ریشمی کباب, تو اس کے اندر میری پوری فیملی تھی. تو اب وہ اتنا بڑا ریسٹورینٹ تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی, تو انہوں نے ایک ریشمی کباب بھی, ہم نے جیسے ہی اس کو تھوڑا سا کاٹ کے, میں ہمیشہ بیچ میں سے کاٹ کے پھر ہم لوگ کھاتے ہیں, ویسے ہی نہیں کھاتے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نکلے نا. اتنی ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں, اتنا لمبا بال, اتنا بڑا سا بال تھا, لگ رہا تھا کسی ان کا کوک کا ہوگا. اچھا ہم نے کمپلین کی, بلایا تو تھوڑا سا شرمندہ ہو کے لے کے گئے. آپ یقین کرو گے مدیہ, آپ کو یقین نہیں آئے گا, دوبارہ سے وہی والا فولڈ کر کے فرائی کر کے دے دیا, دوبارہ سے نکلا. پھر ہم کھڑے ہو, دوبارہ سے نکلا بالکل وہی. انہوں نے اتنے چلا کے آپ نے کہا دوبارہ سے بال گرنے کا کوئی تیل بتا دیتی ہے. تم یہ کھاؤ, چلو اب تم کھاؤ گے یہ بال. اتنے سارے کسٹمرز, کیونکہ ہمیں ایک تھوڑی سی شرم آ جاتی کہ ان کے کسٹمرز خراب نہ ہو, ہم نے بہت ان کو احتیاط کے ساتھ بولا کہ کسی کے رزق خراب نہ ہو, کہ بھائی تم نے دوبارہ ہی کر دیا. پھر ہم نے کہا بس انف, ہم نے نہیں کھانا. تو یہ والی چیز میں نے خود فیس کی میری فیملی کے ساتھ. چلیں یہ تو پھر ریسٹورینٹ ہے, آپ کو پتہ ہے اگر آپ ریسٹورینٹ کی کچن میں کبھی چلے جائیں وہ آپ کھانا ہی نہیں کھائیں گے, آپ کھانا ہی نہیں کھائیں گے. لیکن آپ جسٹ امیجن, چلیں ہم ریسٹورینٹ تو نہیں جاتے, ہم کسی کے گھر چلے گئے, 5 اور وہاں پہ بھی اگر آپ کچنز دیکھ لیں, یہ تو ریسٹورینٹس ہیں, اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل کے کچنز دیکھ لیں تو آپ کبھی انٹر نہیں ہوں گے. واقعی پتہ نہیں کتنا پرانا جو ہے وہ کھانا بھی رکھا ہوتا ہے, جو حلوہ جاتا ہے وہ بھی رکھے ہوئے, ابال کے رکھتے ہیں, ابال کے رکھا ہوا ہے. اور خیر کیا بتائیں, اسٹوریج ہاؤس کے ساتھ ہی باتھ روم بھی, اور باتھ روم کے اندر بھی چیزیں پڑی. خیر اس پہ تو میں بات ہی نہیں کروں گی. لیکن آپ کے ساتھ بالکل صاحب ایسا ہوا کہ آپ کسی کے گھر گئی ہوں اور آپ نے جب کھانا تو کھا نہیں, لیکن آپ نے جب باقی ذرا دیکھے کہ کاکروچ ادھر سے نکل رہا ہے یا کچھ ایسی چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ نے کھانا کھایا ہو. نہیں, کافی دفعہ ہوا ہے, کافی دفعہ ایسا ہوا ہے.
छोटे कॉकरोच तो नहीं, बड़े बड़े भी नाचते हुए चले गए। तो बस क्या कर सकते हैं। तो फिर अब उस वक्त ऐसा होता है ना, लिहाज रखना होता है, सामने वाले का भी लिहाज रखना होता है। लेकिन हम कह तो नहीं सकते वो। मैं अलबत्ता ये कह देती हूँ, बता देते ना, मैं अलबत्ता कह देती हूँ, जब मैं पहले जब डाइवोर्स हुई थी ना, मैं एक फ्लैट में जब शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ पता नहीं यार, नीचे की बिल्डिंग थी ना, गटर लाइन से इतने कॉकरोचेस थे, इतने, ओ माय गॉड, मैंने कहा मैं तो पागल हो जाऊंगी। फिर मुझे किसी ने बताया वो जो इंजेक्शन वाला है ना, यकीन करो तब से मैं उसकी फैन हो गई हूँ। वो जरा लगा लो, वो दिन और आज का दिन है। उसके बाद मजाल है कि कॉकरोचेस हुए उस मतलब उस जगह पर इतने थे कि वो गटर से, क्योंकि जब गटर भी सूखा होता है ना, अंदर एक जगह उनकी बनती है, वहां से निकलते हैं। तो मेन ये कि गटर लाइंस आपके घर की बिल्कुल सही होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मदीहा कि चाहे खैर गटर लाइन तो कभी जिंदगी में कहीं की भी साफ नहीं होगी, आप दवाई डालो, लेकिन आप अपने की जो किचन के जो डस्टबिन है ना, वो आप उसको बिल्कुल क्लीन करें, क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं ना, सारी कार्रवाई उस वक्त हो रही होती है, वो खाना ढूंढ सही। क्योंकि मैं तो एक मतलब एक सफाई फ्रीक औरत हूँ, मतलब मेरा वॉशरूम इतना साफ है कि आप तकिया डाल के भी वहां सो सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका डस्टबिन साफ नहीं है ना, आप कुछ भी कर लें, कीड़े आएंगे, छिपकलियां आएंगी, वो आपको डस्टबिन जो है ना, वो आपको क्लियर करना है आपने रात। डस्टबिन इवन ऊपर का टेबल टॉप है ना, ताकि झाड़ू वाड़ू लग जाए, चूल्हा भी साफ। मुझे समझ में आती, पहले बुजुर्ग ये भी बोलते थे भी घर का कचरा, मैं खुद भी मुझे घर में होती कि भाई कचरा निकालो, नफरत आती है, जैसे बड़े कहते हैं ना कचरा चाहिए। और मैं वेस्ट में मैंने देखा है कि वो लोग रात में अपनी जो कचरे की जो बड़ी सारी बास्केट है उसको बाहर बिन, वो जो बिन है वो बाहर जाके खड़ी कर देते हैं, सुबह आएंगे वो उठा के ले जाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है। और हमारे यहाँ ये होता है कि जी आप रात में निबलिंग का दिल तो करते ही कि थोड़ा बहुत कुछ खा लो, और फिर वो बर्तन पड़ा है बाहर, ये उसी से सिंक साफ होना चाहिए, टेबल टॉप और चूल्हे पे अगर रोटी भी बनाइए तो बिल्कुल नीट। मतलब इंसान कहता है ना सुबह सफाई कर ली, अब छोड़ अब तो क्या कल करेंगे, नहीं रात को जरूरी है। मैंने लड़कियों को कहा है झाड़ू दोबारा लगाओगे तुम ऊपर साफ है, साफ कर लो किसी कपड़े से। हाँ, मैं तो बेचैन रहती हूँ, बेटी से भी कहा है। घर की खवातीनों को ये स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि देखें आज सब हर किसी के घर में बच्चे हैं, बच्चों ने खाना खाया, जहाँ टेबल पे खाना खा रहे हैं, जाहिर है वो तो कुछ ना कुछ गिराएंगे, फिर वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो वो सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें साफ करना, उसको हटाएं साफ, क्योंकि अगर चावल भी पड़ा हुआ है तो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई कॉकरोच आ जाएगा। बिल्कुल आप चाहे कितनी भी सफाई कर ले मदीहा, लेकिन ये आ जाते हैं। लेकिन अभी जैसे आपने बात की हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए अपार्टमेंट्स का सिस्टम बहुत है। अपार्टमेंट्स में अब आप अपार्टमेंट्स में कैसे जाके जो गटर की जो लाइन जो आपने बात की ना, आप उनको साफ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर अपना घर वो साफ कर लिया तो जो साथ वाले अपार्टमेंट से उधर से एक और चीज होती है अपार्टमेंट्स की, आपने फ्यूमिगेशन कराई, आपके सारे चीजें आधी मर गए, आधी किसी और के घर में चली, और वहाँ पे लड़ाई शुरू। अच्छा, आपने बताया नहीं, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। कागज नहीं रखना चाहिए। हम लोग अक्सर जो होता है ना बर्तन के नीचे जो शेल्फ्स पे कागज से भी आते हैं कीड़े, अखबार स्पेशली है, सीलन से आते, बस सीलन और गीले बर्तन, गीले बर्तन, सीलन अगर नहीं होना आप अखबार भी बिछाते हैं, मिसाल दे रही हूँ, मगर उससे नहीं अगर अखबार है, अखबार सीला नहीं है, देखिए आपने बर्तन धो के ना, गीले बर्तन कभी भी ना रखें। और जो हम क्या करते हैं, पतीलियां धोते हैं, उसमें पानी होता है, उसको उल्टा करके अच्छा पहले उल्टा करके बाहर रखें, उसके बाद छोटी छोटी एहतियात है ना। और जूतों के जो डब्बे नहीं होते, जो अक्सर हम लोग ये जूते शूज लेते हैं उसके डब्बे रख देते हैं, उसको डब्बे फेंक दें आप, ये डब्बों के अंदर भी आ जाते ये हैं। गत्ते में और कार्टन्स लाओ, वो गत्ता इनको ट्रैक करता है। दूध के कार्टन्स हैं, पेटियां, कॉर्नर्स में अपने अंडे देते हैं, घर उनको कोई जगह चाहिए होती है, खुली जगह। अब आप सब लोगों से मेरे एक सवाल है, मुझे वन इसका जवाब भी दीजिएगा कि बिल्कि साहब आई स्टार्ट फ्रॉम यू, आप अपने घर में सफाई को और इस बात को इंश्योर करने के लिए कैसी कोई भी हशरात आपके घर में एंटर ना हो, आप क्या डेली प्रैक्टिस है? मैं आपको बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि एक तो जाले लगने नहीं देती घर में। आप ये नहीं हो सकता कि आप जाले लगने दे, जाला नहीं लगेगा। हफ्ते में एक दफ़ा आपने सफाई लाजमी करनी है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि हर्ब्स का मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखने से ये सारी चीज़ें नहीं आती। जैसे लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, गार्लिक है, लहसुन है, उसको किस तरह रखो। और कैबिनेट आपके बिल्कुल सूखे होने चाहिए। बर्तन धोकर आप जैसे बर्तन सिंक में धोते हो तो उसको उल्टा करके रखो, बिल्कुल सुखा कर
उसके बाद आप उनको जो है कैबिनेट्स में रखो। और कैबिनेट्स की जो हम, चाहे प्लास्टिक बिछाया हो, चाहे आपने उसमें अखबार बिछाया हो, कुछ भी हो, वो आपने महीने में एक दफ़ा चेंज करना है। वो पूरी ज़िंदगी के लिए जहेज में नहीं मिला होगा कि वो आपका फेवरेट है। वो महीना भी आप बहुत ज़्यादा बता रही हैं। नहीं, महीना 15 days में तो आप निकाल उसको दें निकाल कागज़ वापस। नहीं, महीने में निकाल दे, क्योंकि देखिए आपने चीज़ें रखी हुई हैं और ख़राब नहीं हो रही क्योंकि आपने गीला नहीं किया है ना। तो आप एक महीने में एक दिन किचन की पूरी अच्छी तरीके से आपने सफाई करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके जो मसाले हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं होलसेल से मसाले लाते हैं, मसाले ला के रखे, पतंगड़ हो जाते हैं, पतंगड़ जो नहीं सारे हो जाते हैं उसमें। बेस्ट तरीका है कि आप अपने मसाले डीप फ्रीजर में रखें। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तो डीप फ्रीजर ही करती हूँ। मैं डीप फ्रीजर में रखती हूँ, मैं दालें भी डीप फ्रीजर उनकी में रखती लाइफ हूँ, बढ़ जाती है। मैं दालें भी डीप फ्रीजर में रखती हूँ, और मैं मसाले सारे फ्रिज में और डीप फ्रीजर में रखती तो उसमें नमी नहीं आ जाती? हूँ। नहीं, कुछ नहीं होता। क्रिस्प जो आपके गरम ताऊ जो साबुत मसाले हैं वो ऐसे क्रिस्प हो जाता है ज़्यादा, जब से लाइक अभी फ्रेश भी क्या होंगे जो आप फ्रीजर से निकालो तो। मैं तो गरम मसाला पीसती हूँ, गरम मसाला पीसती हूँ और डीप फ्रीजर में रख देती हूँ। जो मैं अपने चीजें लाती हूँ, मसाले थोड़े थोड़े निकाले हैं, वो सब रखा हुआ है, बाकी सब डीप फ्रीजर में। हर चीज डीप फ्रीजर में रखती हूँ, क्योंकि देखिए हम इतना गोश्त तो कोई भी नहीं खाता, गोश्त आप ताजा लाके खाओ, सही है ना। ये सारी चीजें आप ताजा, वो चीजों को डीप फ्रीजर की जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि आप डीप फ्रीज क्यों कर रहे हो, प्रिजर्व करने के लिए कर रहे हो ना। प्रिजर्व करने से अच्छा ताजा ले लो। लेकिन ये जो चीजें गरम मसाले वगैरह ना, ये सब आप डीप फ्रीजर में रखो। अच्छा, मसाले की जहाँ तक बात हुई तो मैं जिस तरह अपने घर में करती हूँ वैसे सफाई का तो ख्याल रखते हैं। और रात को बर्तन में कभी भी गंदे, इवन ये कि सूप भी कभी दिल चाहता है ना, तो उसका भी मैं बॉल धोकर उसको ड्राई करके फिर रखती हूँ। ये मेरी आदत हो गई है। अच्छा, एक चीज़, ये सफाई का तो सभी ख्याल रखते हैं, एक चीज़ मैं करती हूँ कि दिन में एक बार मैं सारे कैबिनेट्स खोल देती हूँ, उसको हवा लगने देती हूँ, फैन ऑन कर देती हूँ, उसको हवा लगने देती हूँ। मैं ये लाजमी करती हूँ। इवन ये कि मैं अपनी अलमारियों को भी, जो डोर्स होते हैं ना, उसको खोल देती हूँ। कोई भी घर पे नहीं होता, मैं अकेली होती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ, सारे फैंस ऑन करके थोड़ी सी खिड़कियाँ खोल देती हूँ ताकि ताज़ी हवा आए और जो नमी है, जो सीलन है, वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन ये 15-20 मिनट डेली का मेरा काम है। और दूसरा, मसालों की जहाँ तक बात, जो ड्राई मसाले हैं जैसे धनिया पाउडर है, लाल मिर्चें हैं, तो हम क्या करते हैं, महीना भर के लाए, एक ही जार में सब महीना भर का रख दिया, 1 स्पून डाला, वो थोड़ी हवा लगी, फिर बंद करके रख दिया। कीड़े मकोड़ों को जाना होगा फौरन चले जाएंगे। मेरा तरीका ये है कि मैं लाती तो महीने भर का, लेकिन मैं सिर्फ 1 वीक का ही उसमें जार में डालती हूँ, थोड़ा ही डालती हूँ जितना मैं यूज करना हो। फिर जब वो 1 वीक खत्म हो जाता है, फिर मैं जार को धोती हूँ, उसको ड्राई करके फिर मैं धूप में रखती हूँ। ये मेरा काम होता है। धूप में रखने के बाद दोबारा 1 वीक के जो जितने मसाले हैं वो उसके अंदर डालती हूँ। हर वीक मैं करती हूँ ना। मेरे मसाला, अभी गर्मियाँ थी ना, वो भी बारिश नहीं, मैं ये चीजें करती हूँ, मैं हर वीक करती हूँ। उसको दोबारा सुखाने में इतनी नमी रहती है इस जार के अंदर, नहीं रहती, आप धूप में रखो ना, होगा, इसीलिए से बचने के लिए आप आपने फ्रीज को 1 वीक का। तो मेरा जो एक्सपीरियंस, क्योंकि हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर मेरे ख्याल से पता फरा है कि मुझे जैसे कामचोर को ये सही लग रहा है कि फ्रीजर में रख दो। फ्रीजर बेस्ट है, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। इवन मैदा